केंद्र सरकार देश में टोल प्लाजा में बदलाव के लिए नई तकनीकों पर विचार कर रही है। नई तकनीक अगले 6 महीने में पेश की जाएगी। It is one of the successful technology which is used by NHI. Sir, I am telling you, sir, this is really a remarkable contribution from our side to the country. That before FASTag, our toll income was very less. I don't want to elaborate the reason for that. But now, the FASTag issued till date is 5 crore 56 lakhs. Average daily collection via FASTag is 120 crore rupees per day. And penetration of FASTag is 96.6%, approximately 97%. And the 3% people, habitually, they are paying double toll, but they don't want to take FASTag. The reason is that I don't want to elaborate. But we are also searching that there are some unlawful activities because of the tax and other thing. They are practicing the thing. So we want to make it 100%. But sir, after the ETC also, we are in the solution of making FASTag, in place of FASTag, making satellite, using the satellite by using GPS system in the car, and on the basis of that our idea was to take the toll and take it from it, and it can be easy also. But now the other system with the number plate which we have, on the basis of that the technology is available. Already India, also we have got a lot of good technology. We are in the process. We will select the technology. Presently, in my opinion, still we are not taking official decision. But the number plate technology is good. On the basis of that, there will be no toll plaza, and there will be a sophisticated, computerized, digitalized system by which we can give relief, and we can. There will be no queues, no toll plaza, no person, nothing will be there, and it can give great relief to the people by and large, and government will get absolute revenue from that. But for that reason, we need to introduce the bill into the parliament. Because if suppose anyone is not obeying the system and is not paying the toll, we have to take action against him. Presently, no law is available. So we are also going to introduce the bill into the parliament, and after that we want to implement the best system in the world which is available for particularly in India, and I am confident that it will give the relief and it will resolve your problems. धन्यवाद। वैसे तो गडकरी जी की जो है इन्होंने जो काम किया है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला जैसे ये NHAI के बारे में बता रहे थे कि NHAI की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो रोड बिल्ड करता है उसको वापस उसका पीरियड पूरा होने के बाद वापस NHAI के पास चला जाता है। तो मैंने सुना है कि क्या ये बात मंत्री जी बता सकते हैं कि सुना है कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है? थैंक यू। जिन रोडों को वापस NHAI लेती है। थैंक यू। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ, और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ। एक भी पार्टी का MP नहीं कर सकता सर। NHAI AAA रेटिंग है, और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारे जावड़ेकर जी ज़्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। प्लीज प्लीज मैडम बैठ करके मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHAI का है,
और NHAI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते हैं। और आप जितने लोग जो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ये देखिए और विश्वास रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूँ कि ये पूरा होगा। थैंक यू।